السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات ہوگی پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریوں کی اور تبادلوں کی۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ پشاور کور کی ذمہ داری لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو سونپ دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکٹری پاک فوج تعینات کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے۔ ISPR کے مطابق پشاور کور کی کمان کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اب بہاولپور کور کی کمان سونپ دی گئی ہے۔ چکوال کے گاؤں لطیفال سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور بننے سے پہلے DG ISI رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے پہلے کور کمانڈر بہاولپور رہنے والے لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کا تبادلہ کر کے ملٹری سیکرٹری پاکستان آرمی تعینات کر دیا گیا۔ قبائلی علاقوں میں قیام امن اور افغان صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم پشاور کور کی کمان اب لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کریں گے۔ بطور GOC 7 انفینٹری ڈویژن میران شاہ میں تعینات بھی رہے۔ جنوبی وزیرستان میں بطور بریگیڈیئر بریگیڈ کی کمانڈ کی۔ ISI میں تعیناتی کے دوران افغان امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ چین میں بطور دفاعی اتاشی بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد پروپیگنڈا مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاری، کارروائی کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا۔ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ شہداء کی توہین اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہرزہ سرائے کے معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ وزارت داخلہ نے ٹیم کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹیم میں FIA سے محمد جعفر، ڈاکٹر وقار، ایاز خان اور عمران حیدر شامل ہوں گے۔ ISI کے لیفٹیننٹ کرنل سعد اور IB کے وقار نثار بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ معاملے پر FIA سائبر ونگ پہلے ہی 2 درجن افراد کو طلب کر چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 60 ٹرولرز کا تعلق مخصوص سیاسی جماعت سے ہے۔ آرمی کے سائبر ونگ نے بھی 10 ٹرولرز کی تفصیلات FIA کو دے دی، جن کے خلاف تحقیقات کے بعد پیکا قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا مہم کو خوفناک قرار دیا تھا اور لکھا، خود پسند سیاسی بیانیے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں۔ دینے والوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ ان حرکتوں کا مقصد سرحد پار دشمن کے عزائم پورے کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سماجی نمائندے شہزاد احمد سے خصوصی گفتگو۔ خواجہ آصف نے کہا، عمران خان کو ملک کا خیر خواہ سمجھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ خیرات کے نام پر پیسے اکٹھے کرنا اور سیاست پر خرچ کرنا کہاں کی دیانتداری ہے؟ خیرات کے نام پہ پیسے کلیکٹ کرنا اور سیاست کے اوپر وہ خرچ کرنا، یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ یہ کہاں کا صادق اور امین ہے؟ 5 بندوں نے جو اس کے ملازم ہیں، اس میں ان میں پرائیویٹ سیکٹری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، بلینک چیک ہم سے سائن کروائے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے آتے ہیں اس میں نکل جاتے ہیں۔ تمام مقاصد پورے کر رہا ہے جو ہمارے دشمنوں کے سرحد پار ہمارے دشمنوں کے مقاصد ہیں۔ ہمارے اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے جان قربان کرنے والے جو شہید ہیں، ہمارے جو محسن ہیں، ان کو اٹیک کر رہا ہے، ان کی قربانیوں کو متنازع بنا رہا ہے۔ اقتدار چھن گیا اس لیے میر جعفر اور میر صادق اب بن گئے ہیں۔ جب اقتدار اس کے پاس تھا وہ سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ تھے۔ اس شخص کو اس ملک کا جو ہے خیر خواہ سمجھنا جو ہے میں کہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کو اپنے پارٹی کے لوگوں پہ اعتماد نہیں رہا۔ 9 کے حلقوں میں اس کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے۔ الیکشن کرانا چاہتا ہے تو دونوں اسمبلیاں توڑ دے، اس کے بعد جنرل الیکشن سارے ملک میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں کرے گا۔ آپ نے جب پرویز الہی سے ملاقات ہوئی آپ کی، وہ اندرونی بات تو ایک دفعہ ذرا بتا دیں۔ نہیں، میری اسے ہم جب ان کے گھر گئے تھے پورے خلوص کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ ہماری آفر قبول کی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میں یا صبح کیا ہوا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ انہوں نے جو باتیں کی ہماری پارٹی کے حوالے سے، میرے قائد کے حوالے سے، کہ ہم چاہیں گے کہ دوبارہ اسی طرح تعلقات جو ہے سٹارٹ ہو جائیں جو کچھ 90 کی دہائی میں تھے۔ CM کی آفر قبول کی؟ بالکل قبول کی، بلکہ میں نے 126 بندے کی، انہوں کو جی انہیں لسٹ لے لو سارے کو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا تھا نا ہم نے، لے لو۔ انہوں نے اسی وقت محمد خان بھٹی کو جس کو انہوں نے سیکرٹری بنایا اپنا، اس کو بلا دیا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، سارا معاملہ سیٹل ہو گیا۔
ऐसा क्या हुआ सीएम की ऑफर कबूल करने के बाद वो इनकारी हो गए? सीएम तो हम भी बुला रहे थे उनको, सारे जो है लवाजमात भी हमने पूरे कर दिए थे। वक्त आने पे चौधरी साहब को इस बात का एहसास जरूर होगा, जो हमारी बात में जो थी वो इज्जत थी, एहतराम था, इसके साथ वो कहेंगे ये इज्जत एहतराम करने वाले लोग नहीं हैं। भारत और इसराइल से फंडिंग लेने पर इमरान खान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से मुस्तफ़ी हो जाएं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुतालबा कर डाला। मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम चलाने वालों को इमरान खान ने शाबाश दी होगी। ये भी दावा कर दिया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा खान साहब की इमा पर बनाया गया था। दो चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला। इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा दें और तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाए। सोशल मीडिया पर शर्मनाक गंदा काम पीटीआई के वर्करों की तरफ से किया गया। मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने ये घटिया और गंदी हरकत की है, इन लोगों को इमरान खान ने जरूर बुला के शाबाश दी होगी। मैं खान साहब के पास गया, मुझे कहने लगे ये सनाउल्लाह कैसे जीत गया। कहा जी बस वो जीत गया। कहते अच्छा आपसे तो बंदोबस्त नहीं हुआ, अब मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। दावे से ये ऐलान कर रहा हूँ, वो मुकदमा जो दर्ज कराया गया राना सनाउल्लाह पर, वो मुकदमा इमरान खान की इमा पर दर्ज किया गया। इमरान खान इस मुल्क का वफादार नहीं और उसके साथ सुलह करना इस मुल्क के साथ गद्दारी के बराबर है। शहदा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम ने साबित कर दिया इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है। अवाम इमरान खान को पहचाने, अगर इसका इदराक न किया गया तो ये मुल्क को कौम को हादसे का शिकार कर देगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि तहरीक इंसाफ हो या तहरीक लब्बैक, पुरअमन जलसा और एहतजाज की इजाजत सबको है, लेकिन पीटीआई वालों ने कानून हाथ में लिया तो 25 मई से भी बुरा हश्र करेंगे। ये लोग गुमराही का शिकार है। पीटीआई का सरबराह कौम को तकसीम कर रहा है, गुमराह कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इसकी शनाख्त की जाए, अगर इसे मौका मिला मजीद ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगी। ये इन शुहदा की कुर्बानियों का आप सिला कह लें कि जिसमें निशानदेही हो गई है कि ये हैं वो लोग जो गुमराही का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है। इस बात का अल्टीमेटम दे रहे हो कि इलेक्शन कराओ, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो जो है वो हटा लो। तुम एक दिन एक बात करते हो, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन और बात शुरू कर देते हो। पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज बिल्कुल आपको इजाज़त है, मुल्क का आईन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा। वफाकी वज़ारत दाखिला ने लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के शुहदा की सोशल मीडिया पर तज़हीक करने वालों पर हाथ डालने के लिए JIT बनाई, तो PTI ने 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए SIT बनाने की ठान ली है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को नोटिस भी जारी करेगी। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। के इंसाफ ने पंजाब हुकूमत को विफाक के सामने खड़ा करने की ठान ली। 25 मई के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात का जवाब बनाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फैसला कर लिया गया। रहनुमा फवाद चौधरी की जेर सदारत इजलास में अहम इकदामात की मंजूरी तय पाया कि पंजाब हुकूमत SIT के क़याम का नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी करेगी। तशद्दुद में मुलव्वस अफसरान की निशानदेही करना SIT के TORs में शामिल। तहकीकाती टीम विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ को भी नोटिस जारी कर सकेगी। फवाद चौधरी का कहना है दोनों लीगी रहनुमाओं को तलब भी किया जा सकता है, जबकि SIT को रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की परवेज इलाही हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए एक और महाज खोलने का प्लान भी बना लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के इक़दामात की तहकीकात के लिए स्पीकर सबतैन खान के जरिए कमेटी बनवाई जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है अदालती फैसले की आड़ में सरदार दोस्त मजारी ने कानून से तजावुज किया या नहीं, कमेटी मुकम्मल जायजा लेगी।
तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। 13 अगस्त का जलसा पहले तो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में करने की ठानी और अब चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत इजलास में फैसला तब्दील कर दिया। जलसा लाहौर हॉकी ग्राउंड मुंतकिल कर दिया। इमरान खान की जेर सदारत PTI सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि 13 अगस्त का जलसा अब इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में होगा। पार्टी रहनुमाओं को नए फैसले से आगाह भी कर दिया गया है। इससे पहले PTI ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को दरखास्त भी दे दी थी, लेकिन 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात का जलसा अब हॉकी क्लब लाहौर में होगा, जिसमें इमरान खान अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। हुजूर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, सै रोज़ के प्यासे, जनाब फ़ातिमा के दिल के चैन, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नौहा खानी की, मातम के जरिए जनाब ज़हरा को पुरसा दिया। 18 साल के जवान बेटे की शहादत। शहजादा अली अकबर की लाश जब खैमे लाई गई तो नवासे रसूल की जबान पर था, ऐ मेरे रब ये भी तुझ पर कुर्बान। ये हुसैन इब्ने अली का इम्तिहान था, यजीद क्या जाने। शहजादा अली अकबर की याद में शहर शहर पुरसादारी, मातमी जुलूस निकाले गए। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नुमाइश चौरंगी से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर खत्म हुआ। लाहौर में इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह खैमा सादात और रिवायती रास्तों से गुजरा। इस्लामाबाद और पिंडी में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए, जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर हुए। कोयटा में इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा मिकानगी रोड से मरकजी जुलूस बरामद हुआ और रिवायती रास्तों से गुजरकर इख्तिताम पजीर हुआ। 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के मौके पर तमाम शहरों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात किए गए थे। बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात थे। यही नहीं, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अज़ादारों के लिए सबीलें, मुफ्त मेडिकल कैंप्स और दीगर इंतजामात भी किए गए। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नवी मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। अज़ादारों ने शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। रोहड़ी में 550 साल कदीम मातमी जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा है। ज़ायरीन के लिए नजरो न्याज, पानी और दूध की सबीलों का इंतज़ाम किया गया है। 9 मुहर्रम उल हराम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर शहजादा अली अकबर की पुरसादार। रोहड़ी में 550 साल तारीखी मातमी जुलूस यौम आशूर पर शाम गरीबा से पहले शोहदा कब्रिस्तान पहुँचकर ख़त्म होगा। हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस लतीफ़ाबाद नंबर 5 से निकाला गया। दादू में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्तान में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पहुँचकर ख़त्म हुआ। सरगोदा में सख्त सिक्योरिटी हिसार में जुलूस मंजिल तक पहुँचा। विहाड़ी में जुलूस की गुजरगाहों पर दूध और मीठे पानी की सबीलें लगाई गई थी। डेरा इस्माइल खान में अलम और जुलजना का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह बमो शाह से निकाला गया। हंगू में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस सख्त सिक्योरिटी में अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म हुआ। रावलपिंडी में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस और रेंजर्स के 7,500 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात होंगी। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। तफसीलात रावलपिंडी से नईम जंजुआ की इस रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार के जुड़वा शहर रावलपिंडी में यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मरकजी जुलूस के लिए पुलिस की 7,000 नफरी तैनात की जाएगी। रेंजर्स के 500 जवान भी हमरा होंगे। मुहर्रम की जो अरेंजमेंट्स थी सिक्योरिटी रिलेटेड, इन्हें हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया था। एक प्री मुहर्रम अरेंजमेंट और एक मुहर्रम के दौरान जो पोटेंशियल थ्रेट्स जहाँ भी हैं उनके ऊपर वर्क किया हमने।
पुलिस अफसरान चाहते हैं कि शहरी भी यौम आशूर पर अमन व अमान बरकरार रखने में उनसे ताउन करें। सोशल मीडिया को बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल कोई ना करे। किसी जगह पे फ़िरका वारयत वाली कोई पोस्ट किसी को नज़र भी आती है तो उसे काइंडली पोस्ट को हमारे अपने रावलपिंडी पुलिस के ऑफिशियल पेज पे दिया गया एक फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, उस पे शेयर करें। 10वीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस के अतराफ की गलियों और सड़कों को बंद रखा जाएगा। ऊंची इमारतों पर लॉन्ग रेंज कैमरों के साथ साथ स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे। कैमरामैन हसीब मलिक के साथ नईम जजुआ, समार, रावलपिंडी। लंदन में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मार्बल आर्च से बरामद होकर हाइड पार्क कॉर्नर की जानिब गामजन है। जुलूस में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारान शरीक हैं। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे नवीद चौधरी। जी नवीद, बताइए। इस वक्त मार्बल आर्च और मेरे अक्ब पर हाइड पार्क कॉर्नर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान जो है और इमाम हुसैन उनकी शहदाए करबला की कुर्बानियों पर यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग मार्बल आर्च से गुजरते हुए तमाम ये हाइड पार्क कॉर्नर तक जो है वो सफ़र जारी रखे हुए हैं। लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उन शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। पूरे बरतानिया भर में आज जो है वो जलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग नोहाखानी करते हुए उन शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी, नवीद चौधरी ने अपडेट किया। अमेरिका का शहर शिकागो, यहाँ मरकजी इमाम बारगाह में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ ये मजालिस बपा की जा रही हैं। शिकागो से ही अपडेट करेंगे यासिर फिरोज इस रिपोर्ट में। अमेरिका में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। शिकागो की सबसे बड़ी और मरकजी इमाम बारगाह इस्लामिक एजुकेशन सेंटर हुसैनी में यकम मुहर्रमुल हराम से ही मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें बैरून मुल्क से आए जाकिर वाक़या करबला बयान कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी कसीर तादाद में अहले सुन्नत अफराद मौजूद हैं। बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। अगर हम पूरी दुनिया को इस वक्त यूनाइट करना चाहते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई दूसरा बड़ा वसीला नहीं है। अज़ादारी में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि लाइव स्ट्रीम के जरिए इंटरनेट और रेडियो के जरिए मजालिस बराह रास्त नशर की जा रही हैं। इमाम बारगाह के अतराफ मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी लगाई गई हैं। इस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं अमेरिका में, ये बहुत ही एक अजीब सी चीज होती है उनके लिए। वो देख के हैरत का शिकार होते हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव जाता है कि हम फ्री में हर चीज यहाँ पर दस्तयाब हो रही है। शिकागो में मुहर्रम का मरकजी जुलूस शहर के मरकज डाउनटाउन में 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होगा, जबकि मजालिस का सिलसिला मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और घरों में भी जारी है। यासिर फिरोज, समा, शिकागो, अमरीका। मुहर्रमुल हराम के मौके पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम करके लोग शुहदाए करबला के साथ अकीदत का इजहार करते हैं। कराची के इलाके मलीर का रिहायशी नौजवान भी मुसलसल 7 साल से सबील लगाकर प्यासों को पानी और शरबत पिला रहा है। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदा खुसूसी रेहान है। ये सबील माशाल्लाह से 7 साल से लगा रहे हैं हम लोग। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं माशाल्लाह से और इसका फैज़ उठाते हैं। 8-9 मुहर्रम को हम लोग लंगर करते हैं, साथ में शरबत भी पिलाते हैं और 10 को जो है वो लस्सी और दूध की सबीलें लगाते हैं हम लोग। 20 लीटर वाले जो कैन होते हैं वो हम लोग 50 या 100 कैन हमारे लग जाते हैं 20 लीटर वाला, और जो हम लोग पानी खुद पी रहे हैं वही हम दूसरों को पिला रहे हैं। डोनेशन जो है ये हम लोग पूरा साल जमा करते हैं। हम जितनी भी हमारी टीम है, हर लड़का जो है वो 20-20 हज़ार जिसकी जेब से जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, और जो लोग होते हैं वो जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं जिसका जो दिल करता है वो डोनेशन देते हुए चला जाता है। हम मना नहीं करते किसी को। जो लोग यहाँ से पानी पीते हैं वो मुझे बोलते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहो और इसी तरह और आगे सिलसिला चलता रहे। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की प्यासों, ये सबील है शहीदों के नाम की। ये सिर्फ एक शेर नहीं, एक नियत और एक इरादा भी है, जिसके तहत मुल्क के गली गली, कोने कोने और चप्पे चप्पे पे अज़ादारा ने इमाम आली मुकाम सबीले लगाते और सवाब के मुतमन्नी होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। मुहर्रम की मुनासिबत से ही जहाँ जुलूस, रैलियाँ और मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, वही साहिब इस्तिताअत अफराद की जानिब से लंगर, सबील, नज़र न्याज का सिलसिला भी मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से जारी है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए।
لاہور میں محرم الحرام کی مناسبت سے صاحب استطاعت افراد کی جانب سے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے نذر و نیاز کا۔ سڑکوں پر جگہ جگہ سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں لوگوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیش کیا جا رہا ہے۔ مل جل کے 9ویں 10ویں محرم کو جو ہے نا یہ سبیل کا نظام جو ہے نا مولا کی ذات کو تازہ کرنے کے لیے نا ہم یہ سب کچھ کریں۔ لنگر حسین ہے، یہ ہمارا 9ویں 10ویں محرم صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک یہ سبیل ہماری جاری رہتی ہے۔ صاحب ثروت افراد کی طرف سے لنگر کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ دیگے تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یوم عاشور پر بڑی عقیدت سے لنگر بناتے ہیں۔ عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس طرح لوگ جذبے کے ساتھ کریں ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ اس کام کو کریں۔ محرم الحرام میں نذر و نیاز کی تقسیم اور سبیلے لگانے کی روایت باطل قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ بھوک و پیاس راہ حسینیت پر چلنے والوں کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ کیمرہ مین ندیم قاسم کے ساتھ نوین علی، سما، لاہور۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پشاور میں محرم الحرام کے موقع پر اقلیتی برادری بھی عزاداروں کی خدمت میں پیش ہے۔ ہندو برادری کی جانب سے عزاداران کے لیے سبیل لگائی گئی۔ عبد الرحمان کی رپورٹ۔ 9 محرم الحرام حسینیہ ہال میں شبیہ علم اور ذوالجناح کا بڑا جلوس برآمد ہوا تو عزاداران کی خدمت کے لیے ہندو برادری کے راجپوت تنظیم نے دودھ، شربت اور پانی کی سبیل لگائی۔ 9ویں محرم کو یہاں پر جو سے سبیل لگاتے ہیں ہندو برادری کی طرف سے، کیونکہ ہم بھی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ امام حسین ہمارے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے آپ لوگوں کے ہیں۔ عزاداران حسین نے سیکیورٹی کے حصار میں کالا باڑی چوک میں نماز ظہرین ادا کی۔ ہم نے CCTV کیمراز کا ایک مربوط نظام جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سرویلنس وینز ہیں جو کہ جو پروسیشنز ہیں ان کے ہیڈ اینڈ ٹیل پہ رواں دواں ہیں۔ ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ہال پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ عبد الرحمان، سما، پشاور۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 18ویں صدی میں قائم کی گئی امام بارگاہ اپنے اندر ذکر اہل بیت کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ تاریخی عمارت کے بارے میں بتا رہے ہیں عثمان علیم اس رپورٹ میں۔ بھاٹی چوک کے قریب 45 ایکڑ پر محیط کربلا گامشاہ 18ویں صدی میں قائم کی گئی۔ یہ امام بارگاہ سید غلام علی شاہ المعروف گامے شاہ سے منسوب ہے۔ تعزیہ نکالنے پر گامے شاہ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ گامے شاہ کے انتقال پر انہیں اسی امام بارگاہ میں دفن کیا گیا۔ قزلباش خاندان نے یہ جگہ خریدی اور یہاں مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنا دی۔ امام بارگاہ میں شبیہ علم غازی عباس، جھولا امام علی اصغر اور دیگر زیارات کے ساتھ وسیع و عریض لنگر خانہ بھی موجود ہے۔ یہ کربلا گامشاہ جو ہے لاہور کی قدیمی اور مرکزی امام بارگاہ ہے، اور یہ سید غلام علی شاہ جو بابا گامے شاہ کے نام سے مشہور تھے، آج سے تقریباً 200 سال قبل انہوں نے یہاں پہ یہ عزاداری کی بنیاد شروع کی تھی۔ ملک بھر سے عقیدت مند سال بھر امام بارگاہ کربلا گامے شاہ کا رخ کرتے ہیں، جن کے لیے لنگر اور سبیلوں کا انتظام ہوتا ہے۔ تبرکات کے لیے کربلا گامے شاہ کے اندر بازار بھی موجود ہے۔ پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، یہاں پہ سبیلیں لگتی ہیں، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے ان کے نام کو لے کے، جو اس دن جو ان کے ساتھ ہوا، وہ پیاسے وہ لوگ شہید ہوئے۔ 9ویں 10ویں محرم پہ یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ سبیل کا انتظام کرتے ہیں۔ کربلا گامے شاہ کے در و دیوار بھی غم حسین میں ڈوبے دکھائی دیتے ہیں۔ سید غلام علی شاہ المعروف گامے شاہ کی صدیوں پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی 10ویں محرم کو نثار حویلی سے برآمد ہونے والا سب سے بڑا قدیمی جلوس کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیمرہ مین ندیم قاسم کے ساتھ عثمان علیم، سما، لاہور۔ برِ صغیر پاک و ہند کا پہلا قدیمی لکڑی سے بنا تعزیہ پیر لال شاہ مشہدی زیارت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ محسن علی کی رپورٹ۔ ملتان کا قدیمی سفید تعزیہ چلغوزے اور نیم کی لکڑی سے 1710 میں کربلا کی شبیہ تیار کی گئی۔ دور دراز سے عزادار منت مراد لیے زیارت کے لیے آتے اور صفائی بھی خود کرتے ہیں۔ سکون ملتا ہے، ہم صفائی کرتے ہیں ہر سال، اور 10 محرم کو ہم یہ جلوس تعزیہ باہر نکالتے ہیں۔
पीर लाल शाह मशीदी का ये कदीमी ताजिया 18 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा, वजन 10 मन से ज्यादा और हुस्न जमाल बेमिसाल है। पाक और हिंद का ये पहला ताजिया लकड़ी का, ये पहले गोल्डन था पड़ा, फिर बहुत से ताजिए यहाँ पे बने, सब ने गोल्डन कलर कर शुरू कर दिए। इसकी वजह से हमने इसका कलर इसका वाइट कर दिया। ये सबसे मुनफरिद नजर है ये पाकिस्तान पाक हिंद का ताजिया। पीर लाल शाह मशीदी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसको 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें। नैब कानून में नई तरमीम के बाद गुज़िश्ता 4 साल के दौरान कायम किए गए केस खत्म हो जाएंगे और जाली खातों के नाम पर कायम मुकदमात सिंध मुंतकिल हो जाएंगे। ठोस शवाहिद न होने पर कौमी एहतसाब ब्यूरो रेफरेंस वापस भी ले सकता है। हुकाम ने इस बारे में जायजा लेना शुरू कर दिया है। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। नैब कानून में होने वाली एक और तरमीम से कई हाई प्रोफाइल और सियासी मुकदमात बंद होने का रास्ता खुल गया। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में कायम केसेस में से कई खत्म होने का इम्कान। नए कानून के मुताबिक जिस इलाके में जुर्म सरजद होने का इल्जाम हो उसी सूबे में ट्रायल चल सकेगा। तरमीम के तहत मुबैना जाली अकाउंट स्कैंडल के 14 रेफरेंस, 13 इंक्वायरियां और 18 तहकीकात सिंध मुंतकिल हो जाएंगी तो 50 करोड़ से कम के करप्शन इल्जाम पर नैब का दायरा इख्तियार खत्म होने से कई केसेस सिरे से खत्म ही हो जाएंगे। चेयरमैन नैब को दीगर हुकाम की मुशावरत से अदालत में दायर रेफरेंस वापस लेने का इख्तियार मिल गया। ज़राए के मुताबिक इस इख्तियार के तहत गुज़श्ता 4 साल के दौरान कायम केसेस पर गौर शुरू कर दिया गया है। कमजोर शवाहिद पर नैब की सुबकी का बायस बनने वाले केसेस वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मजाज फोरम से मंजूर मनसूबों पर बनाए गए केसेस मुकम्मल या जुज़वी तौर पर वापस लेने की दरखास्त भी किसी भी वक्त दी जा सकती है। LNG और नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस का जायजा भी नए कानून के मुताबिक दोबारा लिया जाएगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली शब्बीर गुज्जर और उनके मुखालिफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान में सुलह हो गई है। मकामी अदालत ने नज़ीर चौहान के खिलाफ फायरिंग के मुकदमे में जमानत मंजूर करते हुए मुचलके दाखिल कराने की हिदायत कर दी। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जौहर टाउन पुलिस ने अदालत के रूबरू पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA शब्बीर गुज्जर भी अदालत में पेश हुए। नज़ीर चौहान और शब्बीर गुज्जर अहाता अदालत में एक दूसरे को गले मिले और तलखियां दूर करने पर रजामंदी जाहिर की। शब्बीर गुज्जर कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए नज़ीर चौहान को माफ कर दिया। फरीकैन ने सुलहनामा अदालत में दाखिल करा दिया। जो इलेक्शन जीते दूसरे जो हारे उसको जाके मुबारकबाद पेश करे, ये रवायत कायम होनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े, ये जो दुश्मनी है, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। ये गंदी सियासत शुरू हो गई है, ये सियासत नहीं हो। पाक को साफ सियासत करनी चाहिए, अवाम की भलाई की सियासत करनी चाहिए, मुल्क पाकिस्तान की सियासत करनी। अदालत के रूबरू फायरिंग से जख्मी होने वाले आदिल महमूद भी पेश हुए। मदई के वकील ने बताया कि फरीकैन में राजीनामा हो गया है। नज़ीर चौहान की जमानत पर कोई एतराज नहीं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि नज़ीर चौहान के मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। नज़ीर चौहान ने दरखास्त जमानत दायर की, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नज़ीर चौहान की जमानत 50-50 हजार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले गार्ड को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले का नोटिस लिया था। मुतासिरा खातून घरों में काम करती हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 का वही नोमान ग्रैंड सिटी है जिसके मरकजी दरवाजे पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो वायरल हुई थी। गार्ड ने खातून को थप्पड़ मारा था जिससे वो जमीन पर गिर गई थी, जिसके बाद गार्ड ने उसे लात भी मारी। इस दौरान कोई भी शख्स खातून की दाद रसी के लिए आगे नहीं बढ़ा था। मुतासरा खातून घरों में काम करती है, जिसके बेटे को अपार्टमेंट्स में दाखिले से रोकने पर गार्ड और खातून में तल्ख कलामी हुई थी। मेरा बच्चा खड़ा हुआ था खाना लेके, उसको मैंने बोला आ जाओ अंदर, तो गार्ड ने मुझे यहाँ से खींचा, बोला क्यों अंदर आएगा, नहीं आएगा, मैं तलाशी लूंगा। मैंने बोला ले लो तलाशी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो करते करते वो बहुत ज्यादा बदतमीजी पे आया, बहुत ज्यादा बदतमीजी पे आया, तो उसने मुझ पे तशद्दुद किया। ये वाक़या तकरीबन
4 तारीख का है। 4 तारीख के बाद आज 9 तारीख है, 8 तारीख है। आज जाके कहीं हमारी मतलब FIR उन्होंने ली है। आज भी बहुत बहस करने के उस पे लिए। सना नामी खातून ने गार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना शाहराह फैसल में दरख्वास्त जमा कराई थी, जिस पर गार्ड को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई है। वजीर आला सिंध ने भी खातून पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची को गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 200 दवाओं की कीमतों में 20% तक इजाफा हुआ है। फिशार खून की दवाएं 10%, गुदूद मसाना की 15%, सरतान की दवा और जान बचाने वाली कई दवाएं 20% तक महंगी हो गई हैं। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। अभी रिसेंटली कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ है, ना ही ऐसी कोई चीज अभी नॉलेज में है। हुकूमती मौक़िफ़ तो यही है, लेकिन इससे दवासाज कंपनियों की मनमानी कहें या क्या के बाजारों में कुछ और ही शिकायत सुनने को मिल रही है। मैंने मंथ के बाद दोबारा लिया मेडिसिन, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हर मेडिसिन पे एटलीस्ट 100 रुपीज इंक्रीज हुए हैं। मेरी 10 डेज की मेडिसिन आई हैं 4000 की। समा ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से जो मालूमात इकट्ठी की, उनके मुताबिक कैंसर की दवाई 12,000 से बढ़कर 17,000 तक की हो गई। सांस की दवा 300 रुपए, प्रोस्टेट की दवा 700 रुपए महंगी हुई। दिमागी अमराज की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स की कीमतों में 15% तक का इजाफा। शुगर की 964 रुपए वाली गोलियाँ अब 1142 रुपए में दस्तयाब हैं। TB, कैंसर और गुर्दों के अमराज की दवाइयों की किल्लत। दवाइयों की जहाँ तक बात आती है उसमें भी काफ़ी शॉर्टेज है। बेसिक दवाई जैसे पैनाडोल होगी या पेन किलर होगी वो तक नहीं मिलती। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से जवाब लेने के लिए बार बार राब्ता किया गया, मगर हुकाम ने कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। दवाओं की कीमतों में इजाफा और किल्लत पैदा हो जाना यकीनन एक संजीदा मसला है, जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। गंजबख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की सालाना तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सूबाई वज़रा ने अर्क़े गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया। मोहम्मद अली रज़ा की रिपोर्ट। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंजबख्श के 979वें उर्स मुबारक की मुनासबत से होने वाली तकरीब के दौरान मज़ार को 120 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात ख़्वानी से किया गया। तकरीब में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, असलम इकबाल, शमशाम बुखारी, DG महकमा औकाफ ताहिर रजा बुखारी, IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम शरीक थे। तकरीब में शरीक अकीदतमंदों का कहना था कि उन्हें हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी देकर सुकून मिलता है। सब सरकार दाता हज़ूर की अकीदत और मोहब्बत का नतीजा है कि सब दोस्त चले जा रहे हैं। सरकार बहुत ऊंची हस्ती है, जिसे बुलाएं उसी की हाजिरी होती है। गुस्ल की तकरीब के अख्ताम पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ के साथ साथ शुरका की मीठे दूध से तवाज़े भी की गई। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।